سب سے پہلے تو ہم تمام پاکستان تحریک انصاف کی جو ہماری پارلیمانی پارٹی ہے، تمام ایم این ایز، ایم پی ایس، سینیٹرز، ہمارے جو تنظیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی، انصاف یوتھ ونگ، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، وومن ونگ، ہماری مائنارٹیز کے دوست، تمام کو یہاں پر خوش آمدید، چاہے وہ پنجاب سے ہیں، سندھ سے ہیں، بلوچستان سے ہیں، خیبر پختونخوا سے ہیں، آزاد جموں کشمیر سے ہیں، گلگت بلتستان سے ہیں، تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو یہاں خیبر پختونخوا ہاؤس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آپ لوگوں نے آج متفقہ طور پر یوم کشمیر کے موقع پر اپنے کشمیری بھائیوں بہنوں سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے کشمیر کے مظلوم بھائی بہنیں، ہمارے فلسطین کے مظلوم بھائی بہنیں انشاءاللہ تعالی اکیلے نہیں ہیں، کل بھی ہم ان کے ساتھ تھے، آج بھی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، حکومتی حالات ہیں، اس پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو پوری قوم میں تشویش پائی جا رہی ہے اور اس حوالے سے شدید غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے کہ ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کو تو ایک ناحق قید کیا ہوا ہے، ان کی اہلیہ کو ناحق قید کیا ہوا ہے، بشرا بی بی کو، ان کی بہنوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا، ایک تو ملنے نہیں دیا جا رہا، اوپر سے ان پر ہر رات ظلم، جبر و فستائیت کی انتہا کر دی جاتی ہے۔ ان سرد راتوں میں ان پر زہریلا پانی پھینک دیا جاتا ہے، ان کو سڑک پر گرایا جاتا ہے، وہ ظلم بھی ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ اور عمران خان صاحب کا پورا خاندان پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے مسلسل قربانی دے رہا ہے اور بحیثیت پاکستانی، بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کا ایک ادنا ورکر، ہم ان کی قربانیوں کو دل سے تسلیم بھی کرتے ہیں، ان کی ہر ایک بات کو، ان کی عزت اور وقار کو، ان کی احترام کو، عمران خان صاحب کی اہلیہ، عمران خان صاحب کی بہنیں، عمران خان صاحب کی پورے خاندان کو وہ ہم دل میں بھی بساتے ہیں اور اپنے سر کا تاج بھی سمجھتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر، پاکستان تحریک انصاف کی تمام پارلیمنٹیرین ان کے ساتھ مرتے دم تک کڑی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہم میں تشویش ہے، پوری قوم کو تشویش ہے اور غم اور غصے کا اظہار اس لیے کر رہی ہے کہ ان کو ناحق قید کیا ہوا ہے اور ایک ہفتے سے ان کو شکایت تھی ان کی آنکھ میں اور باقاعدہ بتایا بھی گیا، لیکن ان ظالموں اور جابروں نے ایک سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے تحیات چیئرمین، اس پر کوئی غور و فکر نہیں کی اور بات اس حد تک پہنچ گئی کہ ان کا آپریشن کیا گیا، ان کے ذاتی معالج سے اجازت نہیں لی گئی، ان کی فیملی ممبر سے اجازت نہیں لی گئی اور اس کے باوجود ان کو پیمز ہاسپٹل لایا گیا جہاں پر ریٹینا کا اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں، وہاں پر ان کا علاج کیا گیا۔ یہ ظلم، یہ جبر اور یہ طبی دہشت گردی، میڈیکل ٹیررزم، ملک کے سابقہ وزیر اعظم، پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر، سب سے بڑی سیاسی جماعت کے تحیات چیئرمین، اس کے ساتھ کیا گیا وہ ظلم، جبر، فستائیت تو ایک طرف، اوپر سے ایک ہفتہ مسلسل تمام پاکستانیوں کی طرف سے، ان کی سیاسی جماعت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو ان سے ملنے دیا جائے، وہ بھی نہیں کر رہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کی ان سے ملاقات ہوئی، ان کو یہ باقاعدہ بتایا گیا اور انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ رپورٹ مل جائے گی، ڈاکٹرز کو نہیں ملنے دیا گیا اور ابھی تک وہ رپورٹس بھی سامنے نہیں آئی۔ تو جب ایک سیاسی جماعت کے ساتھ، ملک کے سابقہ وزیر اعظم کے ساتھ، ملک کے سب سے مقبول ترین لیڈر کے ساتھ یہ رویہ رکھا جائے گا اور اس کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف اگر احتجاج کی طرف جاتی ہے اور پھر یہ کہنا کہ یہ جماعت صرف احتجاجی سیاست کرتی ہے، تو یہ ظلم دنیا دیکھے کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور تمام
दरवाजे खटखटाने के बाद, तमाम दरवाजों पर दस्तक देने के बाद जो आखिरी रास्ता हमारे साथ रहता है वो एहतजाज का है, और वो एहतजाज हमारा हमेशा आखिरी ऑप्शन रहता है, पहला ऑप्शन नहीं रहता। जैसा कि यहां पर हमारे काबिल एहतराम कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई साहब, हमारे सेनेट के अपोजिशन लीडर काबिल एहतराम अलामा नासर साहब, वो भी बैठे हैं। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको कदर की निगाह से भी देखती है और उनका इज्जत और एहतराम भी करती है। और हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब ने उन पर एतमाद किया है, उनको ये जिम्मेदारी दी है कि एहतजाज और मुज़ाकरात दोनों का इख्तियार इनके साथ है। तो बहैसियत वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहैसियत सिपाही कायद मोहतरम जनाब इमरान खान साहब, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी बात की लाज रखूं, और जैसा कि उन्होंने यहां पर आकर कहा तो मैं उनकी मुकम्मल हिमायत का ऐलान करता हूं और उनकी हर बात को इंडोर्स करता हूं। 8 फरवरी पाकिस्तानी तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में एक सियाह दिन है, और उस दिन वो किया गया जो 1971 और 73 में किया गया था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की तरबियत ने हमें इसकी इजाजत नहीं दी कि हम किसी एक्सट्रीम पर जाए। 17 सीटों वालों को इख्तिदार में बिठा दिया गया। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, उस पर जाली हुकूमत को मुसल्लत किया गया। पूरे पाकिस्तान में अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। एक सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। हर तरह की जुल्म, फस्तायत, बर्बरियत की गई। हमसे निशान छीनने के बाद हमारे कैंडिडेट से कागजात छीने गए, उनको खुला ग्राउंड नहीं दिया गया कि वो कैंपेन करे। उसके बावजूद भी पूरा पाकिस्तान निकला और पूरे पाकिस्तान ने इमरान खान साहब और उसकी जमात पर एतमाद किया और वोट दिया। लेकिन बदकिस्मती से डंडी की जोर पर और बंदूक की नोक पर उस मैंडेट पर डाका डाला गया और इतने नाअहलों को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया कि जो जीडीपी ग्रोथ इमरान खान साहब 6.1 पर छोड़कर गए थे, आज वो जीडीपी ग्रोथ 2.6 और 2.7 के करीब है। इतने नाअहलों को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया कि पाकिस्तान की तारीख में जो अंदरूनी और बिरूनी कर्जे 43,000 अरब रुपए थे, 3 सालों में जो है वो 80,000 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। इतने नाअहलों और निकम्मों को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया कि आज मुसलसल पाकिस्तान तन्हाई का शिकार होने जा रहा है। पाकिस्तान अपने हमसायों से ताल्लुकात दिन ब दिन खराब करते जा रहा है, क्योंकि इनके पास ना जो है खारजा पॉलिसी है, ना कोई रिफॉर्म्स हैं और ना ही ये कुछ समझते हैं। तो 8 फरवरी 2024 को जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ था, उस मैंडेट के लिए इस 8 फरवरी को इंशाल्लाह हमने निकलना है। इस दफा निकलना नहीं है, इस दफा घरों में ही बैठना है। जो जुल्म, जबर और फस्तैयत पंजाब में है स्पेशली, बाकी पूरे पाकिस्तान में ही चलता आ रहा है और अभी भी हो रहा है। तो इस दफा 8 फरवरी को उस मैंडेट की खातिर जो हमारी आवाम ने हमें दिया है, उसकी खातिर घरों में बैठना है। दुकानें बंद रखनी है, अपने अड्डे बंद रखने हैं, ट्रांसपोर्ट के अड्डे बंद रखने हैं, अपनी टैक्सियां घर में खड़ी करनी है, अपने रिक्शे घर में खड़े करने, और पूरी दुनिया को दिखाना है कि इस 8 फरवरी को 2 साल पहले 2026 को हमारी मैंडेट पर डाका डाला गया था और जो जाली हुकूमत हम पर मुसल्लत हुई है, ना हम उस दिन उसको मान रहे थे और ना इंशाअल्लाह ताला आज इसको मानेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, 8 फरवरी का यह एहतजाज इंतहाई जरूरी है और यह आखिरी एहतजाज नहीं है। इस 8 फरवरी को हमने अपनी एहतजाजी सियासत का एक बेहतरीन दिन मनाना है और इंशाअल्लाह ताला इससे आगे फिर मूव करना है।
जिस तरह के चकजई साहब ने कहा कि ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कुछ अरसा चलेगी इंशाअल्लाह ताला, और हम इसके लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, आपने एक तो एतमाद रखना है और एक हौसला रखना है। हम मुसलसल इस जदोजहद में हैं। हमें पता है कि आपको अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब की फिक्र रहती है। वो यहाँ पर मौजूद हर बंदे को रहती है, हर पार्लियामेंटेरियन को रहती है। लेकिन ये जदोजहद ना एक दिन की है ना एक हफ्ते की है, इसने इंशाअल्लाह ताला चलते रहना है। जिस तरह मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने हुक्म दिया कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़े, और वो जिम्मेदारी मुझे दी गई और हम निकले। पंजाब में भी, सिंध में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, इसके बाद इंशाअल्लाह बलूचिस्तान जाना है, फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर जाना है, फिर गिलगित बल्तिस्तान जाना है। और जिस तरीके से हमारी तमाम पार्टी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमों ने, तमाम पार्लियामेंटेरियन ने इसमें अपना कलीदी किरदार अदा किया, और जो मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तोड़ चुकी थी, और वो मोमेंटम एक दफा फिर हमने पकड़ा है, और इंशाअल्लाह ताला ये अभी शुरुआत है, इसको हमने मजीद पीक पर लेकर जाना है इंशाअल्लाह ताला। मुसलसल एफर्ट्स करनी है। तो तमाम पाकिस्तानियों ने, जो हमारे ग्राउंड के वर्कर्स हैं, उन्होंने अपनी सोशल मीडिया की मदद करनी है, और जो सोशल मीडिया पर है उन्होंने अपने ग्राउंड पर वर्कर्स को सपोर्ट करना है। और इंशाअल्लाह ताला हम सब ने मिलकर उन लोगों को जिन्होंने अदलिया को यरगमाल बनाया हुआ है, जिन्होंने जमहूरियत को यरगमाल बनाया हुआ है, जिन्होंने सहाफत को यरगमाल बनाया हुआ है, जिन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद तमाम इदारों को यरगमाल बनाया हुआ है, उनसे मुकाबला है, और उनसे मुकाबला सख्त है। और ये इत्तेफाक और इत्तेहाद के बगैर हम हरगिज नहीं जीत सकते। तो इंशाअल्लाह हमने इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना है, और ये जंग हर सूरत जीतनी है इंशाअल्लाह ताला। सुबह से लेकर शाम तक तमाम पाकिस्तानियों ने इस पर अमल करना है 8 फरवरी को, कि हमने घरों में ही रहना है। हमने एहतजाजन अपने तमाम कारोबार बंद रखने हैं। फिर शाम के बाद जो मशाल बरदार रैलियां हैं वो पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह निकालनी है, पूरी दुनिया में निकालनी है। जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी भी मुसलसल कॉल्स आ रही है, और माशाल्लाह उनका जोश और जज्बा भी दीदनी है, क्योंकि वो मुसलसल राब्ते में हैं मुझसे, और अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं कि 8 फरवरी को भी वो भी निकलेंगे, और इंशाल्लाह उन्होंने भी इस एहतजाज में हिस्सा लेना है, वो भी हिस्सा लेंगे। तो हम सब ने अपने जो हमारे मशरान हैं उनका साथ देना है, और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी के इस एहतजाज को कामयाब बनाना है इंशाअल्लाह ताला। आप सबका एक दफा फिर शुक्रिया। मैं आप सबको एक दफा फिर खिराज तहसीन पेश करता हूं। जिस तरह के फस्तायत की इस दौर में आप इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब के नजरिए के साथ खड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। ये है फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा इंशाअल्लाह ताला।